हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज आपका साइंस का पेपर हो चुका है सीबीएसई बोर्ड का। आशा करती हूँ आप सबका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आंसर की टू सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पेपर। अभी मेरे पास 31/4/3 सेट अवेलेबल है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm draws a current of 5 ampere. The heat developed in the iron in 30 seconds is, तो इसका सही आंसर है 15,000 जूल्स, 15,000 जूल्स। सेकेंड क्वेश्चन, द एसिड प्रोड्यूस्ड इन अवर स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन एंड द बेस यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ड्यूरिंग इन डाइजेशन रिस्पेक्टिवली आर। इसका सही आंसर आना था बेटा ऑप्शन ए, HCl एंड MgOH होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 3, a zygote is formed by the fusion of a male gamete and a female gamete. The number of chromosomes in the zygote of a human is, obvious answer C option 46. Question number 4, the part of seed which is a source of food during germination of seed is, answer है cotyledon A. Fifth question, Zn plus 2CH3COOH gives CH3C double bond O whole twice Zn plus H2. सो द अबव रिएक्शन इज अ, नीचे टाइप्स दिए हुए हैं तो आपने टाइप्स चूज करने हैं। रिएक्शन देख के इट इज़ वेरी क्लियर दैट इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो द राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 6, 4 सॉल्यूशंस नेमली ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड filled in 4 separate beakers are connected one by one in an electric circuit with a bulb. The solution in which the bulb will glow when current is passed are, first option glucose and alcohol, second option alcohol and hydrochloric acid, C option is glucose and sulfuric acid, D option is hydrochloric acid and sulfuric acid. So the right answer will be option D, hydrochloric acid and sulfuric acid. Question number 7, the metals which are found in both free state as well as combined state are, option A gold and platinum, B platinum and silver, C copper and silver, D gold and silver. Right option will be option C, copper and silver. Question number 8, the part of flower which attracts insects for pollination is or are, the option C is correct, petals. Then question number 9, in human beings when the process of digestion is completed, the proteins, carbohydrates and fats are respectively finally converted into, 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से ऑप्शन बी इज राइट बिकॉज फर्स्ट है प्रोटीन्स, दे आर कन्वर्टेड टू अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फैट्स आर कन्वर्टेड टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो सीक्वेंस में दिया हुआ है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन आर। बेटा यहाँ डायग्राम बना के आप रफ में देख सकते हो C6H6। तो C की साइकिल अगर आप 6C के एटम्स बनाओगे तो उसमें 3 डबल बॉन्ड्स और 3 सिंगल बॉन्ड्स होंगी, बट राइट आंसर 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि C के साथ हाइड्रोजन भी तो अटैच्ड हैं, 6 हाइड्रोजन भी अटैच्ड हैं। सो द राइट आंसर विल बी 9 and 3, यानी कि बी ऑप्शन। Question number 11, a plant growth inhibitor hormone which causes wilting of leaves is called, answer option C is correct, abscisic acid. Question number 12, some wastes are given below, garden waste, ballpoint pen refill, empty medicine bottle made of glass, peel of fruits and vegetables and old cotton shirt. Non biodegradable waste among these are, so non biodegradable तो 2 ही हैं, B and C. So the right option will be B, यानी कि सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन बॉल पॉइंट पेन एंड एम्प्टी बॉटल ऑफ ग्लास, ये 2 नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, रेक्टेंगुलर लूप ABCD कैरिंग अ करंट I is situated near a straight conductor XY such that the conductor is parallel to the side AB of loop and is in the plane of the loop. If a steady current I is established in the conductor as shown, the conductor XY will, सो इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा, मूव टुवर्ड्स द साइड ए बी ऑफ द लूप। क्वेश्चन नंबर 14, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of light in glass is 2 × 10⁸ meter per second, the speed of light in water is, सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इसका सही आंसर आएगा 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। Question number 15, when a beam of light passes, white light passes through a region
having very fine dust particles. The color of light mainly scattered in that region is, the answer will be C, blue. Question number 16, consider the following combinations of resistors. The combination having equivalent resistance of 1 ohm is. सो चारों डायग्राम्स आप देख सकते हो. फर्स्ट वाले का आंसर 1 ओम आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे, 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं. सेकंड का भी 1 ओम आएगा, थर्ड का नहीं आएगा, फोर्थ का भी नहीं. सो द आंसर विल बी सी ऑप्शन 1 and 2. क्वेश्चन नंबर 17, बेटा यहाँ से असर्शन एंड रीजनिंग स्टार्ट हो गए, तो असर्शन एंड रीजनिंग के ए बी सी डी ऑप्शंस आप पढ़ लो. देन क्वेश्चन नंबर 17 आई एम गोइंग टू रीड. ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल एरोबिक फॉर्म्स ऑफ लाइफ. ए तो ठीक है असर्शन. बी इज फ्री ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद मॉलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन. रीजन ट्रू है, बट रीजन इज नॉट एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो हम लिखेंगे इसका ऑप्शन बी. 18th क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. बिल्कुल सही है. रीजन दिया है, इफ दे इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टूवर्ड्स 2 डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल. बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है. सो आंसर विल बी ए. क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द सल्फाइड ओर्स कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग ऑफ द ओर. ओके, एंड रीजन इज रोस्टिंग कन्वर्ट्स सल्फाइड ओर्स डायरेक्टली इनटू मेटल्स. सो इसका असर्शन ए तो ट्रू है, बट रीजन गलत है कि रोस्टिंग से सल्फाइड्स डायरेक्टली मेटल्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं. सो द आंसर विल बी सी. क्वेश्चन नंबर 20, इन ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकल्स हैव थिक मस्कुलर वॉल्स देन आर्टरिया. बिल्कुल सही है. वेंट्रिकल्स हैव टू पंप द ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स. बिल्कुल सही रीजन है ए का, क्योंकि वेंट्रिकल्स ने पूरे बॉडी में पंप करना होता है ब्लड. सो उनकी थिक वॉल्स बनाई जाती हैं ताकि वो प्रेशर को झेल सके. सो आंसर ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 20. तो ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर के 20 क्वेश्चंस की आंसर की. आई होप आप सबके आंसर्स आपने मैच कर लिए होंगे और आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी. विशिंग यू गुड लक. बाकी आंसर की देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.